One truth of life that we all fear about and we all hate to accept is death, and moreover, the untimely death of someone in the family. It is of course devastating and you will have no idea on what to do. Life वहीं की वहीं रुक जाती है at such bad moments, and therefore while you're alive, the best thing you should do is to secure the financial future of your dependents or your family, so they do not go through the pain of living an uncomfortable, financially insecure life when you're not around. ऐसा नहीं है कि हम इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते, बट इतने सारे जार्गन्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि ऑफ कोर्स वी गेट कंफ्यूज्ड एंड इन सर्च ऑफ आंसर्स कि हाउ मच कवर डू आई नीड. मेरा दोस्त ने 50 लाख का लिया एक टर्म प्लान, 1 करोड़ का लिया, मुझे कितना चाहिए? आई डू नॉट नो how to go about it and from where I should buy it. It leads to keep postponing this decision. If you ever had any of these questions in your mind, in this video, I will highlight the importance and the need of a life insurance, specifically the term plan. And I will help you find out how much amount and duration is right for you and from where to buy it. Coming up. Hey guys and girls, if you're waiting for the first time, my name is Robin and this channel is all about helping each other improve our knowledge in the field of personal finance and work towards the path of financial freedom. So if you're new here, consider subscribing. So what is a term plan? Term insurance or term plan is the simplest and the most effective of all the life insurance products in the market. ये एक pure protection plan है that provides financial benefits to the family और जो nominee है of the insured amount in case of untimely death of the policy holder during the course of policy. देखिए एक टिपिकल टर्म प्लान में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते. सो इफ़ यू सर्वाइव योर पॉलिसी पीरियड, मान लीजिए आप 30 के हैं, आपने 30 साल की पॉलिसी ली, आप 60 तक रहे, विच इज़ गुड थिंग, बट आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे और इसी वजह से आपको काफ़ी बड़ा कवरेज मिल जाता है इन वेरी लो प्रीमियम. और ये इसका एक सॉलिड एडवांटेज है जहाँ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस मिक्स नहीं किया गया है. काफ़ी लोगों के लिए ये एक टर्न ऑफ होता है, उन्हें रिटर्न चाहिए, वापस चाहिए, एंड इसलिए ऑफ लेट several insurance companies have tweaked the term plan to provide some maturity benefit. जिन प्लान्स को हम TROP कहते हैं, टर्म रिटर्न ऑन प्रीमियम प्लान्स. आप वो गलती मत करिएगा. एक बेसिक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप सेव करेंगे उसे एक इंडेक्स फंड लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए. The corpus you will end up making would be much higher than what you would receive from the insurance company अगर आप उनसे TROP रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले प्लान खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में. So if you've seen the recent survey done by Max Life Insurance on the India Protection Question, some interesting facts came out. I was also watching the interview between Mr. Prakash Tripathi, who is the MD and CEO of the Max Life Insurance, and also Mr. Amitabh Kant, who is the CEO of नीति आयोग, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है. अब उस इंटरव्यू में भी वही डिस्कस किया कि इंडिया में अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि चलिए सब ऊपर वाला देख लेगा, हमें क्यों सोचना है, हम इस बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में क्यों ही होगा हमारे साथ ऐसा कुछ. यही सब फाइंडिंग्स रही इन द रिसेंट सर्वे, और मिस्टर त्रिपाठी ने अपने वर्ड्स में ये कहा कि द सर्वे रिवील सम इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स अबाउट द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन. ये लोगों को कितना फील होता है प्रोटेक्टेड हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस से, एज वेल एज the attitude, the behavior and apprehensions people have around life insurance. So मैंने सर्वे का रिजल्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है, आप प्लीज़ गो थ्रू इट इफ़ यू फैंसी अ रीड. बेसिकली की पॉइंटर्स यही रहे सर्वे के, और जो मैंने कुछ नोट किए कि इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ओनली 1 out of 5 इंश्योरेंस होल्डर्स हैव टर्म इंश्योरेंस, विच इज़ वेरी लो पेनिट्रेशन. ओनली 1 out of 5 इंश्योरेंस होल्डर्स. And death is still a taboo amongst the educated urban Indian, जहाँ पे 21%, 1/5 do not like to think of death. उन्हें लगता है हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए. And term insurance, despite being the most fundamental and cheapest form of financial protection, अभी भी still lacks a significant uptake in urban India. चलिए अब बात करते हैं how much cover do you need and for how much duration and how much term planning is enough. अगर हम उन क्वेश्चन से बात करें, देखिए there is no one fit all formula. कुछ लोग annual income multiply by 10 बोलते हैं, कुछ लोग annual expenses multiply by 15 बोलते हैं to get to that magic figure. मेरे हिसाब से there is more to it, क्योंकि हम inflation factor मिस कर देते हैं यहाँ पे, and every family has different requirements and circumstances. So एक फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता. मैंने क्या किया है, I've attempted to create an Excel based sheet which will help you find the right amount for you. उसमें आपको couple of things एंटर करनी है, जैसे कि आपके आज के मंथली एक्सपेंस कितने हैं और इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या रहेगा, आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं क्या अभी, या कोई LIC पॉलिसीज़ हैं, एंड आपकी डिपेंडेंट्स को कितने समय तक
वो मंथली एक्सपेंसेस चाहिए इन्फ्लेशन इंक्लूडेड। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे ऑन द राइट इंश्योरेंस अमाउंट फॉर यू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी गिव यू अ क्विक डेमो ऑन हाउ टू यूज दिस स्प्रेडशीट। सो चलिए वो शीट देख लेते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप मेरे सिस्टम में देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे टर्म प्लान कैलकुलेटर बनाया है जो आपको बताएगा इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड, और मैंने कुछ नोट्स दिए हैं कि आप जो है येलो सेल्स में डेटा एंटर करिए और ग्रीन सेल्स को अपडेट करिए रिक्वायर्ड। तो ग्रीन सेल्स में मैंने यहाँ पे 2 चीज़ दी है, जैसे कि इन्फ्लेशन। तो मैंने मान लिया है कि इन्फ्लेशन 6% है जो हर साल इस हिसाब से बढ़ेगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 8% दे सकते हैं इफ़ यू थिंक 8% इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। और यहाँ पे मैंने दिया रिस्क फ्री रिटर्न, या आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके जो डिपेंडेंट हैं दे हैव फेयर अंडरस्टैंडिंग कि वो मनी जो टर्म प्लान से मिलेगा वो एक्चुअली दे कैन पुट इन इंस्टेड ऑफ एफडी दे कैन पुट इन सम बेटर इंस्ट्रूमेंट, तब आप इसको बढ़ा दीजिए। फॉर नाउ लेट कीप इट एट 7%। और एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि मान लीजिए आप आज 30 साल के हैं और आप सोचते हैं कि आप रिटायर हो सकते हैं 60th व्हेन यू सेलिब्रेट योर 60th बर्थडे। तो मतलब 30 साल हैं, आपको लगता है कि 30 साल में आप अपनी सारी लायबिलिटीज़ पूरी कर देंगे, कोई डिपेंडेंट आप पे नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए आप आज आपको कुछ हो जाता है, सो हाउ लॉन्ग योर फैमिली वुड नीड द मंथली एक्सपेंसेस, आपको ईयर्स बताना है इफ़ यू डाई टुडे। तो आइडली ये आपकी करंट एज और जो रिटायरमेंट एज है उसका डिफरेंस है विच इज़ 30। आप इसे कम कर सकते हैं, अगर यू थिंक दैट योर चिल्ड्रन विल बी इंडिपेंडेंट मच बिफोर इट तो आप इसको 20 कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये स्प्रेडशीट दिखाता हूँ। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है और उसका इन्फ्लेशन हम 8% मान रहे हैं, आपके मान लीजिए कोई आज लोन नहीं है, आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, आप पहली बार निकले ढूंढने पॉलिसी लेने, तो अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो देखोगे नीचे, सो 30 सालों के लिए ये कैश फ्लो चाहिए। पहले साल में पहले मंथ में मंथली एक्सपेंस चाहिए, अगले साल से वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता जाएगा अमाउंट एवरी ईयर 8%। सो 10th ईयर में 99,000 रिक्वायरमेंट होगी आपकी फैमिली को, वही 20th ईयर में 2,15,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट होगी, वही 30th ईयर में 4,65,000 की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब आप अचीव कर सकते हैं विद दिस अमाउंट, जो कि बेसिक इंश्योरेंस नीड कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करी है। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर नहीं है ऑफ कोर्स, और कोई करंट लोन्स नहीं है, तो व्हाट यू नीड टुडे इज अ टर्म प्लान ऑफ 2.07 करोड़। वही मैं बोल रहा था, अगर आप यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं है इतने टर्म प्लान के लिए, वैसे तो आजकल बहुत आराम से मिल जाता है, बट अगर आपको लगता है यू आर नॉट एलिजिबल, या यू नो कि ये 30 साल तो नहीं चाहिए मेरे डिपेंडेंट्स, और मेरा जो बच्चा से आज 2 साल का है वो ऑफकोर्स अगले 20 साल में अर्निंग कैपेबिलिटी उसकी आ जाएगी, तो आप इसको आप 20 साल कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं येलो सेल को, और आप 20 साल कर देंगे तो आप देखोगे आपका जो टर्म प्लान का रिक्वायरमेंट रहा वो अभी 1.31 करोड़ हो गया है, और काफ़ी कम हो गया। आपको सिर्फ 1.3 करोड़ चाहिए, और आप नीचे अगर ये कैश फ्लो वाला टाइम देखोगे तो अभी ये 20 साल के लिए ही अपडेट हो गया, बाकी के लिए यू डोंट नीड your dependents do not need this money। So आप यहाँ पे अपना जो भी मंथली इनकम, मान लीजिए आपका 1 लाख का है मंथली एक्सपेंस, तो आप इसको 10 ये कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका अमाउंट आ जाएगा। आप इन्फ्लेशन आपको लगता है नहीं 10% होना चाहिए, तो आप 10% के हिसाब से लगा सकते हैं, तो वो आपका टर्म प्लान भी अपडेट हो गया कि कितना आपको कवर चाहिए। वही अगर आपको लगता है कि डिपेंडेंट्स आर क्वाइट फाइनेंशियल सेवी, तो वो रिटर्न लगा सकते हैं इन इंडेक्स फंड, जो आराम से अगर आपको 12% देंगे तो वो रिड्यूस करके आपका यहाँ पे टर्म प्लान का कवरेज 3 करोड़ से 2 करोड़ हो गया। अगर मान लीजिए आपका करंट लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ बड़ी टिकट साइज़ हैं, जो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि इफ़ यू अनफॉर्चुनेटली डाई, आपकी फैमिली वो EMI जो है ना रहे और वो मंथली एक्सपेंसेस चलते रहें, बट जो टिकट साइज़ बड़े बड़े थे, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा कार लोन है या पर्सनल लोन है, मान लीजिए 20 लाख के लोन है, तो वो 20 लाख एक साथ चले जाएँ, तो आप ये ऐड कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी कोई एक टर्म प्लान लिया हुआ है, और या फिर कोई LIC पॉलिसी ली हुई है, मान लीजिए 25 लाख की पॉलिसी ली हुई है आपने, सो ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप ये पूरा अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सिस्टम ने कैलकुलेट किया कि आपको 2 करोड़ का टर्म प्लान रिक्वायरमेंट था, बट आपने ऑलरेडी एक 25 लाख का लिया हुआ है, बट आपके पास कुछ करंट लोन्स हैं जो इमीडिएटली क्लोज आउट हो जाने चाहिए। तो ओवरऑल दी ओवर अंडर अमाउंट, मतलब आप कितने अंडर इंश्योर्ड हैं या कितने ओवर इंश्योर्ड हैं, तो यहाँ पे आप 1.8 से अंडर इंश्योर्ड हैं। तो दैट इज़ हाउ द शीट वर्क्स।
ये मैं आपको भेज दे रहा हूँ. आई मीन यू हैव इट इन दी लिंक इन माई यूट्यूब वीडियो. सो ये लिंक आपको मिल जाएगी. एंड बताइए, इसको यूज़ करिए. देखिए, इसको मैंने बहुत सिंपल बनाया है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है. इट इज़ गिविंग यूर अमाउंट बेस्ड ऑन योर एज, योर एक्सपेंसेस एंड मेनली हाउ लॉन्ग योर फैमिली नीड्स. अगर आपकी फैमिली 10 साल में इंडिपेंडेंट हो जाएगी देन तो वो ऑब्वियसली जो ओवरऑल अमाउंट है वो बहुत कम चाहिए होगा. चलिए, आई होप ये शीट आपको यूज़फुल लगेगी. और मुझे बताइए मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ. अगर इसमें कोई गलतियाँ हो तो मुझे बताइए, एंड देन आई विल मॉडिफाई इट एंड देन री अपलोड ऑन दी ड्रॉप बॉक्स. चलिए देन कंटिन्यू करते हैं वीडियो. द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी टू नो हाउ टू बाय देम एंड फ्रॉम वेयर टू बाय देम. देखिए, इंडिया में अराउंड 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं. एक तो आप अच्छे से जानते हैं, LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, विच इज़ द ओनली पब्लिक कंपनी इन दिस लिस्ट. रिमेनिंग 23 आर और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस. मैंने नीचे IRDA की लिंक भी दी हुई है, जो वो बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है, एंड स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीद सकते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. आजकल काफ़ी पॉपुलर वेब एग्रीगेटर्स जैसे कि पॉलिसी बाजार है, उनसे भी ले सकते हैं. देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. अपनी हेल्थ हिस्ट्री, अपनी स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग हैबिट्स, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स, जो कुछ भी है क्लियरली कॉल आउट करिए. हो सकता है आपका प्रीमियम आपके फ्रेंड से ज़्यादा हो, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज द लास्ट थिंग यू वुड वांट कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए. एंड स्पेशली इन टर्म प्लान आप तो होंगे भी नहीं अराउंड टू सी इट फॉर योर सेल्फ. एंड सोचिए हाउ मच पेन इट विल एड टू योर फैमिली. So be very honest when you fill that form. कुछ मत छुपाइए. For term insurance plans, the entry age is set at a minimum of 18 years and I think maximum 65 है for buying any term plan. Just like any other insurance product, इसको भी tax exemption मिलता है. I mean you get tax benefit as part of section 80C and 10D as per the IT Act 1961. If this is your first time here on my YouTube channel, I will really appreciate if you hit that subscribe button, as this channel is all about helping each other onto the path of financial freedom. So to summarize this video, the key thing we discussed on life insurance and term plan is कि देखिए, there is no second thought about the fact that a term insurance is probably one of the best purchase you can do with your money. क्योंकि एक बार आप इतने लो प्रीमियम पे इतना बड़ा कवर ले लेंगे, आप हमेशा मेंटली फ्री रहेंगे कि आपकी फैमिली आपके बाद भी फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी. सो इट प्रोवाइड्स यू हाई कवरेज एट अ वेरी वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्रीमियम. इट कैन बी बॉट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फ्रॉम एनी इंश्योरेंस प्रोवाइडर. ऑनलाइन लीजिए, प्रीमियम और कम होता है. यू नीड टू कंसिडर फॉर इन्फ्लेशन योर करंट एक्सपेंसेस, आपकी करंट एज और आपकी जो एक डिजायर रिटायरमेंट एज है, उससे डिसाइड करिए द राइट अमाउंट फॉर यू. एंड डाउनलोड कर लीजिए जो कैलकुलेटर मैंने अभी आपको दिखाया था. And let me know if you need any help with their calculator. Please do share, subscribe and like the video if it was of any help to you. I'll see you next week. In the meanwhile, if you have any questions, suggestions, recommendations, please write them in the comment section below. Also, you can write to me on my Facebook, Twitter, Insta @therich budget, and I sit down every week to respond to the best I can, or I will guide you to the right resources. Jaldi milte hain. Till then, keep it simple, take care and go shine.